لیے یہ مہینہ کچھ نیا سبق سکھائے گا اور ستاروں کی روشنی میں مارچ میں 27 تاریخ ان افراد کے لیے سب سے زیادہ ناخوشگوار ترین ثابت ہوگی. اسی حوالے سے جو ہم نے بات کی ہے. اور دوسرا اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ ماہر فلکیات، ماہر علم فلکیات جناب مصور زنجانی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. بہت شکریہ آپ کا. اچھا سر، اب جو ناظرین اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اسکرین کے سامنے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ستاروں کا حوال بتایا جائے، تو کہیے گا کیا کہتے ہیں ان کے ستارے؟ اس میں ایسا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ سے بتاتے چلے آئے ہیں کہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے انسان کا ایک تجسس رہا ہے اپنا کسی بھی طور کے پر مستقبل کو جاننے کے لیے، اور اسی وجہ سے ہمارے جو شاعر ہیں، ہمارے جو پوئٹ ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ حقیقی مسلمان وہی ہوتا ہے جو ستاروں کے اوپر کمن جو ہے وہ ڈالتا ہے. تو اسی اعتبار سے ہمیشہ سے دین کا مسلم ہم لوگ یہ بھی ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ عالم الغیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم علمی طور کے اوپر اس میں گفتگو کرتے ہیں اور اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے جو چیزیں لے کے آتے ہیں اس میں نو ڈاؤٹ مارچ کا مہینہ ہمارے پاس روحانی طور کے اوپر بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ دو بڑی خوبصورت اسلامی مہینے ہمارے پاس چل رہے ہیں، جو کہ ماہ شعبان اور انشاءاللہ 23 تاریخ سے پھر آگے رمضان جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ ماہ شعبان کو وہ نسبت ہے جو کہ حضور نے اس کو اپنے ساتھ منسوخ کیا ہے، اور رمضان کی نسبت آپ کو علم ہے، ہمارے ناظرین کو بھی علم ہے کہ وہ اللہ کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے. اسی حوالے سے زوڈک سائنس کی بات کی جائے تو یہ پورا مہینہ ہر طرح کے زوڈک سائنس کے لیے بہت زیادہ اتار چڑھاؤ لے کے آنے والا ہے. لیکن بالخصوص جیسے کہ میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا، آپ نے بولا کہ پائسیز والوں کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنس کا حامل مند ہو جائے گا، اور اس کی امپورٹنس کی ہمارے پاس اسپیسیفک ریزن ہوتی ہے. ہم کوئی بھی بات جو ہے وہ بغیر علمی دلائل سے نہیں کرتے. ہمارے پاس علمی دلائل ہوتے ہیں کہ کیوں کون سی تاریخ جو ہے کہ زوڈک سائن کے لیے نہت ہو سکتی ہے، کوئی اچھی ہو سکتی ہے. جیسے ناظرین کو لے کے بھی خاصی تشویش پائی جا رہی تھی، یعنی میں نے بھی ذکر کیا، آپ نے میری بات کو بھی کوٹ کیا کہ جو برج ہوت ہے یا برج جدی ہے یا برج عقرب ہے، ان ستاروں کے بارے میں یہ تشویش پائی جا رہی تھی کہ ان کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ مارچ کا مہینہ ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم خصوصی طور پہ آپ کو بلائیں، آپ ان کو بتائیں کہ ایک مہینہ کیسا ان کے لیے ہو سکتا ہے. جی بالکل، اس میں ہر طرح کے زوڈک سائنس کو کیونکہ ہمارے پاس جو پورے پاکستان میں عوام ہے ہماری، کیونکہ آج کل جو ایک دم سے پولیٹیکل چینجز آ رہی ہیں، ہر طرح کے حالات چینج ہو رہے ہیں، تو پھر مارچ کو ہم دیکھیں 23 مارچ کا دن اس وجہ سے بہت امپورٹنٹ کا حامل بن جاتا ہے پائسیز والوں کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس پائسیز کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس مزید 2 زوڈک سائنس اور ہیں، اور وہ زوڈک سائنس اگر میں بتاؤں کہ آپ کو کیپریکون نہیں ہے، کیونکہ کیپریکونینس کو بھی یہ تھوڑی سی ایشوز ہیں کہ شاید ہمارے لیے یہ ہو سکتا ہے. اور ایک اور زوڈک سائن جو کہ اسکارپینس کو بھی تھوڑی سی تشویش ہے کہ شاید ہمارے لیے 23 مارچ جو ہے وہ تھوڑی سی خطرناک ہوگی. حالانکہ ان دونوں زوڈک سائنس کے لیے اتنی پرابلمز نہیں ہے جتنی پرابلم پائسیز والوں کو ہو سکتی ہیں. اور بیسکلی پائسیز کو یہ پرابلم کیوں ہوگی؟ یہ پرابلم اس وجہ سے ہوگی کیونکہ 23 مارچ کو پائسیز میں مرکری جو ہے وہ اپنی پوزیشن رکھے ہوئے نظر آتا ہے، اور مرکری جو ہے یہاں پہ کمزور پوزیشن پہ ہوتا ہے. ہم اپنی اسٹرولیجیکل لینگویج میں اس کو بولتے ہیں حبوط کی پوزیشن. یہ مرکری کی کمزور پوزیشن ہے، اور مرکری کا تعلق میڈیا سے ہے، کمیونیکیشن سے ہے، قابلیت سے ہے، بات چیت سے ہے، انڈرسٹینڈنگ سے ہے. اور مرکری رولنگ سائن ہے بیسیکلی جیمنائی کا اور ورگو کا. اب دونوں کا رولنگ سائن کیونکہ اپنی ویکسٹ پوزیشن پہ ہے، تو ہمارے پاس جو 3 خطرناک زوڈک سائنس اس مہینے میں آتے ہیں جن کو اپنے لیے بہت زیادہ چیزیں پلاننگ کر لینی چاہیے پہلے سے بھی. ابھی کیونکہ مہینہ شروع ہوا ہے، پورے مہینے کی پلاننگ ہونی چاہیے، اپنی بات چیت کو، اپنے ڈیسیژنس کو، اپنی پلاننگ کو، چاہے وہ پلاننگ ان کی فائنینشلی ہے، چاہے وہ پلاننگ ان کی کام کی ہے، چاہے وہ پلاننگ ان کی کسی بھی طور پہ ہے، فیملی افیئرز ہیں، دوستوں کے افیئرز ہیں، سوشلی طور کے اوپر ہیں. ہر طرح کی ایگریمنٹ کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے جیمنائی، ورگو اور پائسیز والوں کو، کیونکہ مرکری رولنگ پلانٹ ہے جیمنائی اور ورگو کا. ان کا رولنگ پلانٹ ویک پوزیشن پہ ہوگا تو ان کو تھوڑی سی پرابلم آ سکتی ہے. سر ان کے لیے لکی نمبر کون سا ہے؟ وہ پرابلم ہوگی. لکی نمبر اور لکی اسٹون بھی ان کا بتا دیں، یہ بھی پوچھا جا رہا ہے. دیکھیں لکی نمبر جو ہے وہ تو زوڈک سائنس کے ڈیجٹس پڑھ سکتے ہیں. مرکری رول کرتا ہے 5 نمبر کو، 5 نمبر جو ہے وہ جیمنائی کا اور ورگو کا لکی نمبر ہے. اسی طرح پائسیز والوں کو دیکھا جائے تو پائسیز کا جو رولنگ سائن ہے ہمارے پاس وہ جوپیٹر ہے، جو کہ روحانیت سے منسوب ہے، جو کہ خوش بختی سے
माल से, रुपए पैसे से मंसूब है। और जुपिटर का नंबर कैसे आ जाता है 3, तो पाइसेस वालों का जो लकी नंबर रहता है वो 3 नंबर है। अब अगर हम लोग जेमस्टोन की बात की जाए तो इनको बेसिकली जेमस्टोन से ज्यादा इस पूरे महीने में सदकात की जरूरत होती है। अब सदका जो ये कर सकते हैं ज़ोडिक साइंस, ये बेसिकली ग्रीन कलर की किसी भी चीज का सदका दे सकते हैं। और ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं कि जो डेली बेसिस में घर में सब्जी पकाई जाती है वो सब ग्रीन कलर की है। आप जो निजारात के ऊपर बरकत के तौर पर चादरें चढ़ाई जाती हैं वो सबज रंग की है। ग्रीन कलर की आप कोई कैंडी टॉफिस लेके वो भी बच्चों को तकसीम कर सकते हैं दावत की नीयत से। आप चुनटों को डाल सकते हैं कोई भी ग्रीन कलर की चीज। तो ये बेसिकली सदका है सबज रंग का जो कि इन ज़ोडिक साइंस को देना चाहिए। लेकिन हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने नाजरीन को जितनी बेसिकली स्ट्रेस और डिप्रेशन का आजकल का माहौल चल रहा है, नेगेटिविटी चल रही है, हमारी कोशिश रहती है कि हम एक अच्छी उम्मीद दें, एक अच्छी होप दें। हम एक उम्मीद दें कि ये मुश्किलात परेशानियां बड़े अच्छे अंदाज से ओवरकम हो जाएंगी। तो हमारे पास इस महीने में एक बहुत अच्छी खुशखबरी भी है अपने उन ज़ोडिक साइंस के लिए जो रूल करते हैं बेसिकली वीनस को। वीनस रूलिंग प्लैनेट है टॉरस का, लिब्रा का, और इन दोनों का रूलिंग प्लैनेट जो कि वीनस है वो अभी एक्सॉल्टेड पोजीशन पे आ रहा है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और वो आ रहा है 9 मार्च को। 9 मार्च का दिन एक ऐसा खूबसूरत दिन होगा ऑलमोस्ट स्पेशली उन ज़ोडिक साइंस के लिए जो कि टॉरस है, उनके लिए जो लिब्रा है, और स्पेशली इसकी एक्सॉल्टेड पोजीशन जो है वो भी ये बड़ी खूबसूरत चीज है कि जहां पे हम पाइसेस वालों के लिए 23 तारीख को थोड़ा सा एहतियात की तरफ लेके जा रहे हैं, वहीं पे पाइसेस वालों के लिए खुशखबरी ये भी है कि 9 मार्च का जो दिन है वो उनके लिए बड़ा खूबसूरत दिन है। क्योंकि अगर मरकरी को पाइसेस में 23 तारीख को हबूत हो रहा है तो वीनस को 9 मार्च को पाइसेस में एक्सॉल्ट हो रहा है। एक्सॉल्टेड पोजीशन किसी भी प्लैनेट की बड़ी खूबसूरत पोजीशन होती है। तो पाइसेस वालों के लिए 9 मार्च का दिन एक बड़ी खुशकिस्मती का दिन भी होगा। इसमें अगर वो चाहते हैं कि अपनी रिलेशनशिप की बॉन्डिंग अच्छा करना चाहते हैं, अपने काम में निखार लेके आना चाहते हैं, उनकी सोच में पॉजिटिविटी रहती नजर आती है, तकलीफ नजर आती है। और इवन ऐसे हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं जो परेशान चले आ रहे हैं अपने रिश्तों के लिए, शादी के लिए, अपनी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स के लिए, ये तमाम तर मामला 9 मार्च 10 मार्च ये 2 दिन ऐसे हैं कि जो पाइसेस वालों के लिए और ऐसे ज़ोडिक साइंस के लिए जिनका ताल्लुक टॉरस और लिब्रा से है, उनके लिए ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने हर तरह के रिश्तों में खूबसूरती पैदा करने के लिए, कुछ बख्ती लेके आने के लिए। तो हमारे पास कोई वज़ाइफ बता सकते हैं इनको, कोई वज़ाइफ करें अगर ये इनके काम रुके हैं तो? बिल्कुल वज़ाइफ जो है, क्योंकि हम बीइंग अ मुस्लिम हमेशा से हमें जो रेमेडीज करनी चाहिए वो बीइंग अ मुस्लिम हमें वही करनी चाहिए जो कि हमें इस्लाम शरीयत के मुताबिक हो। अगर कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से इनके लिए वक्त कैसा है? देखिए, कारोबारी वक्त के लिए देखा जाए तो वो बेसिकली जो हफ्ते के पहले 10 दिन है वो करियर कारोबार के लिए बहुत खूबसूरत है। कोई भी ज़ोडिक साइंस जो कि काम करियर कारोबार करना चाहते हैं, क्योंकि वीनस बहुत अच्छी पोजीशन पे। इसके अलावा रिसेंटली जो हमारे पास जनवरी का महीना गुजरा उसमें सैटर्न अपने जाती घर में बहुत अच्छी पोजीशन पे हासिल है। तो करियर कारोबार के लिए ये पहले 10 दिन बहुत अच्छे हैं। उसके बाद स्पेशली हमारे पास कमर दर्द की डेट्स होती है। ये वो डेट्स होती हैं जो कि आइमा के नजदीक भी बहुत अच्छी नहीं है किसी भी काम के लिए। और ये बेसिकली कमर दर्द की पोजीशन सबसे ज्यादा कमजोर और वीक होती है कैंसेरियन के लिए। कैंसेरियन के लिए जो दिन होंगे हमारे पास 13, 14 और 15, ये 3 दिन ऐसे हैं जिसमें मून की सबसे वीक पोजीशन होगी स्कॉर्पियो में। तो कैंसेरियन को चाहिए कि इन 3 दिनों में किसी भी तौर के ऊपर कोई ऐसा काम ना करे जो कि नया काम हो, कोई ऐसी चीज ना करे जो कि फाइनेंशियल तौर के ऊपर उनके लिए अच्छी ना हो, कोई ऐसा एग्रीमेंट ना करे, कोई मुआहदा ना करे जिसको ये पूरा ना कर सकते हैं। इन थोड़ा सा इंक्लाइंड नजर आते हैं डिसीजन मेकिंग के ऊपर। इस एतबार से इनको थोड़ी सी बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत रहेगी कैंसेरियन को। और एक रेमेडी कैंसेरियन को इन डेट्स में करने की जरूरत है जो कि कोई भी व्हाइट कलर की चीज का ये सदका देना शुरू करें, जिसमें बहुत ज्यादा मैं हाईलाइट करूंगा कि नमक का सदका दें। नमक का सदका करें। अगर हम अक्रब की बात करें तो सर अक्रब के बारे में क्या कहेंगे? स्कॉर्पियो की अगर बात की जाए तो बेसिकली स्कॉर्पियंस के लिए ये पूरे महीने की जो प्लैनेटरी पोजीशन हम लोग देखें तो स्कॉर्पियंस का रूलिंग प्लैनेट जो कि मार्स है, ये मंथ के स्टार्ट है इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं। ये अपने
साइन से बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन पे है और कोई भी रूलिंग साइन अपने हाउस से बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन पे रहे तो वो बेसिकली थोड़ा सा स्कॉर्पियंस के मिजाज में ऑलरेडी थोड़ी सी जज्बाती डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा होती है। तो ये मंथ भी थोड़ा सा इनके लिए इमोशनली तौर के ऊपर इनबैलेंस का मंथ है। इनको इमोशनली तौर के ऊपर अपनी चीजों को कंट्रोल रखना चाहिए। नो डाउट स्कॉर्पियंस के लिए पहले 10 दिन लव अफेयर्स के हवाले से, अपनी औलाद के हवाले से, अपनी रिलेशनशिप के एतबार से, अपने प्रैक्टिकल जितने भी मैटर्स है स्पेशली में पार्टनरशिप के जितने काम है उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 10 दिनों के बाद का जो इनका फेज आएगा उसमें ये बहुत ज्यादा इमोशनली तौर के ऊपर चीजों के साथ इनकी जो अटैचमेंट हो चुकी होगी, जब चीजें उससे डिटैच होना शुरू होंगी तो फिर इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज से इनको थोड़ा सा अपने ऊपर मेंटली तौर के ऊपर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत होगी कि ये जल्दबाजी में, अग्रेशन में और इमोशनली किसी की कहे में आके इमोशनली, जैसे इंसान एक इमोशनल फूल बन जाता है, तो स्कॉर्पियंस को थोड़ा सा इस चीज को ओवरकम करने की जरूरत रहेगी ये पूरा महीना। और स्कॉर्पियंस अगर कुछ सबका देना चाहें तो इस पूरे महीने में स्कॉर्पियंस के लिए एवरी ट्यूजडे कोई भी रेड कलर की चीज ले लें, जिसमें स्पेशली अगर ये गोश्त ले ले या कोई भी रेड कलर की चीज जैसे ले सके इजीली, ये सप्ताह के तौर पर देना शुरू करें तो इनका ये पूरा महीना बहुत अच्छे अंदाज में इंशाल्लाह गुजर जाएगा। अगर कोई चावल वगैरह या दाल का सदका देना चाहे तो इस हवाले से क्या है? देखिए, चावल और दाल का अगर सदका देना चाहे तो इसमें से 2 डिफरेंट कलर हमारे पास आ जाते हैं। चावल व्हाइट कलर है और व्हाइट कलर रिलेट करता है मून को। दालों में बहुत सारे कलर हैं लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली जो यूज करते हैं ज्यादा वो येलो कलर आ जाता है। येलो कलर की जो दाल है वो बेसिकली रिलेट करती है सन को। तो ये बेसिकली चांद का और सन का सदका बन जाता है। तो तमाम का ज़ोडिक साइंस डेली बेसिस की बुनियाद पर इनको जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, जो भी मसाइल आ रहे हैं, इनको चाहिए कि इन दोनों चीजों को मिक्स करें। मिक्स करके या तो इवन अपने घर की छत के ऊपर डाल दे परिंदों के लिए, या किसी ऐसी जगह के ऊपर डाल दें जहां से परिंदे, कीड़े मकोड़े, या अगर ये समझते हैं कि किसी गरीब मुस्तहिक को दे देनी चाहिए तो ये उसको भी दे सकते हैं सदका की नीयत से। तो इनके पूरे महीने की प्रॉब्लम मसाइल आहिस्ता इंशाल्लाह रिजॉल्व होना शुरू होते हैं। इसके अलावा जो बताएं कि हम लोग बात कर रहे थे तो तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए मैं एक चीज हदिया करता चलूं कि अगर तमाम ज़ोडिक साइंस अपनी डेली बेसिस के ऊपर किसी भी तौर पर मसाइल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो उनकी किसी भी करियर के एतबार से हो, तो हमारे पास अल्लाह ताला ने से 6 कलमे दिए। उसमें से जो 5वां कलमा है, 5वें कलमे की जो पहली आयत होगी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि, इसलिए आयत ये तमाम का ज़ोडिक साइंस डेली बेसिस के ऊपर अपने विर्द में, वजीफा में शामिल कर ले तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से, पाक कलाम से पूरे महीने में मसाइल, परेशानियां, मुश्किलात चाहे वो किसी भी देश के ऊपर हो वो कम होना शुरू होंगी और आपको इंटरनली तौर के ऊपर एक हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप अपने इर्द गिर्द की प्रॉब्लम्स को, अपने इर्द गिर्द के माहौल की जो नेगेटिविटी है उसको ओवरकम कर सकें। अच्छा, जो अकरब है इनके लिए आप ये बताइएगा, स्कॉर्पियो वालों के लिए, कि ये अगर कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली एक इंसान सरमायाकारी करता है उसके लिए बहुत सोचता है, तो अगर ये कंफ्यूजन का शिकार हैं तो कारोबार करने के लिहाज से कैसा है ये महीना? स्कॉर्पियन के लिए मैंने अभी आपको अर्ज किया कि स्कॉर्पियन के लिए पहले 10 दिन ये अच्छे, पहले 10 दिन इस एतबार से अच्छे हैं। लेकिन स्कॉर्पियन को मैं एडवाइस यही करूंगा कि ऑलरेडी अगर ये इंडिविजुअली तौर के ऊपर कुछ बिजनेस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो ये ऑलरेडी उसी फील्ड में रहे जिसका इनको एक्सपीरियंस है। कोई नया एक्सपीरियंस करना, कोई नई पार्टनरशिप करना, कोई नया अपने काम में इवन कोई रिफॉर्म लेके आना, जो चीजें ऑलरेडी इनकी चल रही है एज इट इज वैसे ही लेके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इनकी डिसीजन मेकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है। ये बेसिकली इमोशनली तौर के ऊपर वीक डिसीजन मेकिंग की तरफ इंक्लाइंड है। तो इनको अपने नए बिजनेस से रुक जाना चाहिए। स्पेशली जो मैंने आपको डेट्स बताई हैं कमर के रख रखी 13, 14 एंड 15, ये स्पेसिफिकली वो दिन है जिसमें स्कॉर्पियंस वालों को कोई भी नया एग्रीमेंट, नया बिजनेस, नई इन्वेस्टमेंट, इवन स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनके लिए इतना ज्यादा सुटेबल नहीं होगा। सही है। अच्छा, अब हम अन्य जो है इन स्टार्स की तो बात कर ली, अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान के लिए कैसा देख रहे हैं आप ये महीना?
मैं पाकिस्तान के लिए देखा जाए तो अभी रिसेंटली एकदम से अवाम ट्रॉमा में चल रही है बेसिकली ना। कल का दिन जो अवाम ने गुजारा है तो मेरे ख्याल से अवाम जो ट्रॉमा में गुजर रही है कि पता नहीं इकोनॉमी हमारी किस तरफ जा रही है। लेकिन बीइंग द एस्ट्रोलॉजर, बीइंग द मुस्लिम, बीइंग द पाकिस्तानी, हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हमारी तरफ से एक बहुत अच्छा पैगाम जाए, लोगों में हिम्मत हौसला जाए और प्लेनेट की पोजीशन के मुताबिक जो हमें चीजें नजर आती हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मार्च का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें पाकिस्तान को दोस्त ममालिक की तरफ से एवज मिलती नजर आएगी। कुछ शरारती तौर के ऊपर नए मंसूबे जो है वो अमल में आते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा वीनस की और जुपिटर, ये दो बड़े खुशबख्त प्लैनेट है। वीनस मोहब्बत का सितारा है, जुपिटर जो है वो रूहानियत का प्लैनेट है। इन दोनों का इकट्ठा हो जाना एक ही घर में और इन दोनों की कंजंक्शन की नजर बनना, और ये बन रही है पाकिस्तान के जायके में